अबाउट पारस आई थिंक ही टेक्स हिज टाइम एंड अगर आप उनके टाइप की लड़की हो या अगर आपने उनको रिस्पेक्ट दी है तो वो 100% कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे. और ये कुछ गेम शो ही कुछ ऐसा था कि यहाँ पे वो 5 लड़कियों को एनालाइज कर रहे हैं. About Paras, I think I was a bit petrified before I could get into the show because it's really wacky, very notorious, very naughty, very unpredictable. And after I got into the show also for the first 10-15 days, I couldn't really gel with him that easily. I was having a tough time. Everybody saw it. Hi Sanjana, welcome to Desi Feed Press News TV. Hi. How are you doing? Very well. How are you? Good. So Sanjana, I have few questions for you. Mm-hmm. So, what was your first reaction when you got Mujhse Shaadi Karoge, the show? So my first reaction when I got Mujhse Shaadi Karoge is go ahead, look into the entire Big Boss season and check out who this guy is. And it was all about getting to know him, if I really want to go for the show, if I really like him, if I really don't like him, and things like that. Okay. So Sanjana, how was your entire journey with the show? I think it was more of an adventure when now I look back at it, and I was just not prepared for Mujhse Shaadi Karogi to wind up. And it came as such a shocker to us. Initially, the producers made an announcement that it's going to be ending in 12 days because of coronavirus. And then we were like, what the hell, is this a prank? Because they told us, buckle up and do your best. You have only 12 days. So I thought they're just motivating us so that we can do really, really well and we can, really give our 100%. But then later on, they came to us saying we are winding up in 48 hours. And as a shocker, Vikas Gupta came inside the house and the entire show ended in less than 24 hours. And we were like out of the house in 15-20 minutes once the show was done. In 2.5 hours, I was in my flight to Bangalore and I was just pinching myself. Is the show over? Is this a bad dream? Because it's unbelievable how coronavirus has taken over the entire world. The entire world is suffering with coronavirus, and something like this is very misfortunate and very unpredictable, and something like this which has happened, and if you're inside the house you have no clue about what is happening outside, so it's unbelievable for anybody to take this big news suddenly. True. So Sanjana, before joining the show, what you used to think about Paras and how different is it now, how we feel about him? About Paras, I think I was a bit petrified before I could get into the show because it's really wacky, very notorious, very naughty, very unpredictable. And after I got into the show also for the first 10-15 days, I couldn't really gel with him that easily. I was having a tough time. Everybody saw it, and it's very, very tough to be in good books of Paras. But then as time went, he kind of realized that, okay, this girl is genuine. And I'm naturally a hyperactive person. I'm naturally an energetic person. And these people were like, no, she's in front of the camera. That's why she's doing this. That's why she's doing that. I was telling them, यार मेरे घर में सब hyperactive है. मैं hyperactive हूँ. मेरे पापा hyperactive हैं. मेरी बहन hyperactive है. This is in our khandan. It's in our blood. And I naturally sleepless. I'm more of a workaholic. I'm more of a bubbly person. तो फिर इनको लग रहा था ये कैमरा की वजह से ही कर रही हैं, करे जा रही हैं. बट 15-20 दिन हो गए देख के ये सब लोग मुझे थक गए, बट मेरी एनर्जी कहीं पे भी डाउन नहीं हुई. तो इनको कहीं ना कहीं तब पता चला कि ये लड़की जेन्युइन है और ये जेन्युइनली ऐसी एनर्जेटिक लड़की है. और उसके बाद एक अच्छा दोस्ती का रिश्ता हम दोनों के बीच बनने लगा, जो कि बहुत ही अच्छा था. एंड एक्चुअली स्पीकिंग, पारस इज़ वेरी नाइस गाय और बहुत ही इमोशनल है. बट उनको एक बार इमोशनली अटैच होना पड़ता है एक दोस्त के साथ. एक बार वो दोस्त बन जाए तो वो जेन्युइन है. अगर वो दोस्त नहीं बने तो फिर भगवान बचाए. So Sanjana, our contestants have said in the recent interview that Paras and Balraj don't really respect girls. What do you think about that? What are your views? Paras and Balraj don't really respect girls. About Paras, I think he takes his time, and अगर आप उनके टाइप की लड़की हो या अगर आपने उनको रिस्पेक्ट दी है तो वो 100% कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे. और ये कुछ गेम शो ही कुछ ऐसा था कि यहाँ पे वो 5 लड़कियों को एनालाइज कर रहे हैं. तो जब ये 5 लड़कियों को एनालाइज कर रहे हैं, अगर सबके साथ इन्होंने दोस्ती बना ली तो फिर ये एनालाइज कहाँ पर कर पाएंगे. तो कहीं ना कहीं ज़रूरी था कि ये सबके साथ थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करे, थोड़ा डिस्टेंस रखे, थोड़ा रिजर्व रहें. बट मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी पारस ने किसी को डिसरिस्पेक्ट किया होगा.
बट हाँ, किसी के तौर तरीके अगर आपको अच्छे नहीं लगते और अगर आप उस लड़की को बोल रहे हो कि आपके तौर तरीके मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो फिर वो डिसरिस्पेक्ट करना नहीं होता है, वो डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं होता है। जैसे एक दो लड़कियों ने, उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, है ना, बहुत ही सिंगुलर में बात करती थी। एक और लड़की जाके दूसरे लड़के की गोद में बैठ गई, जबकि वो शादी करने आई है पारस से, और उन्होंने बोला कि मुझे ऐसी लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती जो जाके 10 दिन की मुलाकात में दोस्ती में जाके दूसरे लड़कों के गोद में बैठ जाए। अगर वो हार्श है तो फिर वैसे तो दुनिया के सभी लड़के हार्श हैं। सो आई डोंट थिंक पारस इज़ हार्श एट ऑल। बट पारस ने पूरी छूट दे रखी थी 5 लड़कियों को कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको ऑब्जर्व करना था कि ये कैसी लड़कियां हैं। अगर वो स्टार्टिंग में बोल देंगे मुझे ऐसी लड़की अच्छी लगती है जो खाना बनाए या जो वो पूरे कपड़े पहने, जो कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, बहुत ही लिबरल है, एंड ही लाइक्स गर्ल्स हु आर वेरी बोल्ड एंड हु आर गो गेटर्स काइंड ऑफ गर्ल्स. So that is the thing. I don't think he disrespected women at all anywhere. He was just analyzation, वो analyzation कर रहे थे सभी लड़कियों का. और बलराज, I didn't have a good time talking to him in the show. बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं गाइड भी किया जब मेरा एक इमोशनल फेस चल रहा था घर में कि है ना तुझे इनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए. अचानक से विदाउट एनी रीज़न वो फ्लिप हो गए, अचानक से उनका बर्ताव चेंज हो गया, अचानक से हार्श हो गए. तो ये अचानक से कैसे लोग बदलते हैं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू दैट कैटेगरी. और मुझे लगता है कि अगर आप एक घर में रह रहे हो, हाँ डिफरेंसेस होंगी, 12-13 सेलिब्रिटीज़ एक घर में हैं, सभी को अपना अपना हेड वेट है, सभी के पीछे उनकी खुद के अचीवमेंट्स है, तो कैसे सब लोग खुश रह सकते हैं? क्योंकि सब लोग सोचते मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और स्टिल अगर आप एक घर में रह रहे हैं कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी. तो अगर कोई झगड़ा भी होता है तो मैं 15-20 मिनट में मैं अपने आप को बड़ा या छोटा सोचे बगैर मैं खुद ही जाके अप्रोच करती थी, अरे यार खुश रहते हैं, छोड़ो जितने दिन है घर में खुश रहते हैं. क्योंकि हमारी गारंटी तो इतनी ही थी कि हम इस फ्राइडे तक सबके सब घर में हैं, और अगले सैटरडे से जो आएगा एविक्शन का दिन, उसके बाद में कौन घर में है कौन नहीं है कोई नहीं जानता. तो मेरा तो यही एक अप्रोच रहता था दैट आई रियली वांट अ फ्रेंडली काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, बट people can get really weird, and I think Balraj is very weird towards me. I still don't know the reason, and I'm very shocked with his behavior. So Sanjana, what is your take on Shehnaz's character? शहनाज एक दिल से बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही बबली लड़की है, और मुझसे शादी करोगे के टाइम में शी वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, बिकॉज आई थिंक शी जस्ट साइन द शो सोच के कि बिग बॉस के प्रोड्यूसर्स है, एंडमॉल है, वाईकॉम है, एक और बड़ा मौका है, बड़ा मज़ा आएगा, और वो शो के अंदर आ गए. और शो साइन करते उनको बाद में वो शादी जो एक टाइटल था वो बहुत ही भारी पड़ने लगा, क्योंकि उनका दिल कहीं था और वो कहीं है, मतलब उनका दिल सिद्धार्थ के पास था, वो बहुत ही ओपनली बोल चुकी हैं, और वो शारीरिकली और वो फिजिकली हैं मुझसे शादी करोगी के शो में, मानसिकता में वो प्यार करती है सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला से. तो कहीं ना कहीं ये एक गेम शो उनको कुछ भाया नहीं और अच्छा नहीं लगा, और उनका चार्म जो था बहुत कम हो गया था. बट शहनाज के बारे में दुनिया कुछ भी बोले या कुछ भी ना बोले, मैं इतनी सी बात करूँगी कि शी इज़ वेरी गुड एट हर हार्ट. बिकॉज कई बार व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू इमोशनल फेस इन द हाउस, आई मेरे पास, मुझे उन्होंने रिवाइव किया, उन्होंने मुझे फिर से एंकरेज किया. उन्होंने बोला क्यों रोती हो तुम अगर ऐसी छोटी मोटी बातें होती हैं? मैंने बोला नहीं यार, कितना कोई बातों में दूसरों को डांट के लड़े, मुझे नहीं हो रहा है ये, मतलब डांट के लड़ना हर किसी के साथ. तो शहनाज ने बोला कि तुम रोगी, तुम्हारी आंसू की यहाँ कदर नहीं है, उठो और फाइट बैक करो. मैंने बोला मुझे फाइट करनी ही नहीं है शहनाज. उन्होंने बोला तुमको चॉइस नहीं है, यही है यहाँ पे गेम शो, अगर तुमको सर्वाइव करना है, अगर तुम दबोगी तो लोग तुमको और दबाएंगे, अगर तुम उठोगी और जवाब दोगी तो लोग आराम से अपने आप से ही डिस्टेंस में रहेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे. फिर तो ऐसी एक मोटिवेशनल टॉक शहनाज को मुझे देने की ज़रूरत नहीं थी अगर वो एक सेल्फिश लड़की थी, बट वो एक बहुत ही स्वीट लड़की है, और अगर कोई दुख में है तो फिर वो आके उनसे बात करती है. और मेरी नज़र में वही मायने रखता है कि अगर कोई दुख में है, या अगर किसी की हेल्थ ख़राब है, या अगर कोई लो है, तो कौन जाके उनसे बात करता है? मेरे हिसाब से वो ही एक अच्छा इंसान होता है, ना कि जब आप खुश हो आपका साथ कोई निभाता रहे, वो तो दुनिया साथ निभाती है. सो आई थिंक शी रियली सपोर्ट्स पीपल हु रियली नीड एनकरेजमेंट, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी ग्रेट अबाउट शहनाज. Okay. So Sanjana, share with us some bad and good moments of the show.
बैड मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू अगेन, फॉर्मेट ही कुछ ऐसा था, 13 सेलिब्रिटीज़ एक घर में डाल दिए गए थे। तो बैड मोमेंट स्टार्टिंग में तो जसलीन से बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, और मैंने जसलीन को बोला भी था, देख जसलीन, आई डोंट वांट टू इंट्रूड योर पर्सनल स्पेस। और मैंने उनको उन पे हावी होने से पहले मैंने उनको बोला भी था दैट देखो, मजाक मजाक में बातें अलग है, अगर तुम हैवी स्टेटमेंट्स बोलोगी तो फिर बाद में मैं हैवी स्टेटमेंट्स बोलूँगी और वो आप पे बहुत हैवी पड़ेगा। मैंने उनको ये बोला भी था, बट उन्होंने फिर से बातें कैजुअली ली और फिर से हावी हुई मेरे पे, फिर से हावी हुई मेरे पे, और मैंने भी 2-4 बातें सुना दी, बिकॉज एवरीबडी इज़ ए ह्यूमन बीइंग। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि फिर मैं है ना सब कुछ टॉलरेट करूँगी और फिर मैं कुछ गिव बैक नहीं करूँगी या कुछ आर्ग्यू बैक नहीं करूँगी। तो जसलीन के साथ कुछ हुआ, फिर हीना तो बात बात पे मुझ पे हावी होती थी। ये लाइक हीना को एक्चुअली एंडोमॉल वाले उनको हर एक रियलिटी शो में उनको एम्प्लॉय कर देना चाहिए। जैसे अगर बिग बॉस 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी सीजन हो रहा है, हर सीजन में हीना अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा दिन बोलती रहती है सबको कि ये क्यों कर रहे हो, ये करो, बैटरी बदलो, माइक पहनो। तो वहाँ पे वो सब करने के लिए माया जी हैं, बट द होल डे हीना विल इंस्ट्रक्ट यू। बर्तन तो वो धोएंगी नहीं, खुद का धोएंगी, लेट हर बी हैप्पी। और कोई धो रहा है, पानी का स्पीड कम करो। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि फिर मैं ये गेम शो के लिए आई हूँ, या मैं वाईकॉम के लिए आई हूँ, या मैं एंडोमॉल की आर्टिस्ट हूँ, या ये खुद ही वाईकॉम है, या ये खुद ही एंडोमॉल है। तो पूरा दिन इरिटेट करते रहते थे वो। और कौन कितना से रोज टोको। मैंने बोला था उनको, देखो लिव एंड लेट लिव, बीच में मत आओ। गैस साफ कर रहे हैं, घर में जो एक्स्ट्रास हैं वही एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। सबको ये दिखाई दिया कि मैंने उनको बोला कि तुम जिंदगी में एक्स्ट्रा का काम करती हो, है ना, बट मैंने वो क्यों बोला वो लोगों को दिखाई नहीं दिया। मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि वो पूरा दिन रात टोकती है, कोई सुने तो कितना सुने। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी है ना, वो सीरियल में वो विलन सास आती है ना, वो आ गई है यहाँ पे, प्रकट हो गई है, और मुझे इनकी बात पूरा दिन सुननी पड़ेगी। तो फिर मैं भी पक गई एंड आई स्टार्टेड गिविंग इट बैक। तो सबको मेरी बुराई दिखी, क्योंकि मैंने उसको एक आइटम गर्ल बुलाया, मैंने बोला तुम एक्स्ट्रा हो, बट सबको ये बात पहले दिखनी चाहिए कि ये लड़ाई स्टार्ट किसने की। हम अपने आप में गैस साफ कर रहे थे। तो फिर वो आके बोलती है अगर आप एक्स्ट्रा हो तब भी आप घर के एक्स्ट्रा काम करोगे, तो ये नहीं हो सकता, राइट। वी कैन नॉट सिट एंड टेक बुलशिट। एंड हम वहाँ पे डांट खाने नहीं गए हैं, हम खुद को डिफेंड करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ बोलोगे तो सामने वाला 2 चीज़ बोलेगा, अगर आप सामने वाला 2 चीज़ बोलेगा तो आप 3 चीज़ बोलोगे। तो आपको वो बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए अगर आपने खुद ही प्रोवोक किया है सामने वाले को। So Sanjana, going to Shahnaz's chemistry, have you watched their new album? What's your take on that? मुझे एल्बम अच्छा लगा, बट मुझे पारस और माहिरा का एल्बम ज़्यादा अच्छा लगा। बारिशों में आंसुओं का पता नहीं चलता, मुझे कहीं ना कहीं सोनू कक्कड़, टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम एडिक्टेड टू नेहा कक्कड़'s म्यूजिक्स, और पूरे लिरिक्स भी याद है मुझे, मैं उतनी एडिक्टेड हूँ, तो मुझे वो ज़्यादा टची लगा। भुला दूंगा भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बट आई वॉन्ट टू सी, इट माइट बी पारस एंड माहिरा, इट माइट बी शहनाज और सिद्धार्थ एज अ फ्रेंड। आई वॉन्ट टू सी देम इन हैप्पी एल्बम्स, आई डोंट वॉन्ट टू सी देम इन सैड सॉन्ग्स। भुला दूंगा इज अ वेरी नाइसली शॉर्ट सॉन्ग, शहनाज बहुत खूबसूरत लग रही है इस गाने में, बट मुझे उन सबको एक हैप्पी गाने में देखना है, लाइक रोमांटिक गाने में देखना है या दूसरे शेड के गाने में देखना है। आई डोंट वांट टू सी देम क्राइंग रोते हुए नहीं देखना चाहती मैं वो, कोई चाहे दोनों में से कोई भी गाना हो। Okay Sanjana, thank you for your views and time. Thank you so much.